child is losing his front teeth very early, prematurely, he may face difficulties in his speech. उसको बोलने में दिक्कत आ सकती है, उसके प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स भी गलत जा सकते हैं. सो मिल्क टीथ का एक प्रॉपर फेज़ में आपको केयर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप ब्रेस्ट फीडिंग नाइट टाइम कर रहे हो और ये काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड है, अनवांटेड अनडिमांडेड फीडिंग कर रहे हो, लाइक बच्चे को भूख नहीं है बट फिर भी सिर्फ सुलाने के लिए उसके मुंह में अगर हम दूध का बॉटल थमा दें या उसको सिर्फ सुलाने के लिए अननेसेसरी फीड किया जा रहा है, तो उसके मुंह में वो दूध का एक लेयर काफ़ी टाइम तक रहता है, स्पेशली नाइट में. उसके दांतों के ऊपर एक मिल्क लेयर मिनिमम 8 to 10 आवर्स रहता है. सो इट इज़ वेरी हार्मफुल बिकॉज डीके जो होता है केरीज, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, ऑल आर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज. सो इनको खाने के लिए शुगर लगता है. सो ब्रेस्ट मिल्क हैव अ गुड अमाउंट ऑफ लैक्टोज. So they take out, they extract the lactose from it and they start demineralizing teeth of the child. So आपको इसका इनिशियल स्टेज अगर कंसिडर करोगे तो वाइट डीमिनरलाइजेशन, वाइट स्पॉट्स बच्चे के दांत पे दिखते हैं. इसका मतलब है कि डीके का प्रोसेस चालू हो गया है. सो ये बैक्टीरिया वो लैक्टोज को पकड़ के दांतों को ख़राब करना चालू होते हैं. अगर आप ये प्रोलॉन्ग फीडिंग ना करो, रात को सोते टाइम बच्चे के मुंह में दूध का बॉटल या ब्रेस्ट फीडिंग करके दूध का लेयर ना रखो, तो ये डीके प्रिवेंट किया जा सकता है. वेन एवर चाइल्ड टेक्स एनी सॉर्ट ऑफ स्टिकी फूड, अर्ली चाइल्डहुड केरीज इज इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट. मतलब मुंह में एट अ टाइम वो मल्टीपल टीथ अफेक्ट करता है. Hello and welcome to our channel Dental Talks with Dr. Snehal Dhattrak, proudly brought to you by My Oral Care Private Limited. Hi, I'm Christine Zedek and we always bring you topics for awareness and educational purposes so that you will learn more about dental health care. Now today we have a very interesting topic. It's especially for all you beautiful mothers out there and moms to be. Now we know how crucial it is to take care of your children, especially when they're tiny, right? But little do we know that sometimes these nurturing habits could have an unexpected impact on the child's oral care. Now, we are going to dive into this, and this is a conversation you all should really pay attention because it's really going to come into good use. All right, so welcome, doctor. So good to have you here. How are you doing today? I'm great, Christine. Thank you so much for taking this lovely topic today. Yes, because now is the crucial question which a lot of people out there actually they don't even know about it most of the time. So forget wanting to know because a lot of people don't even have this awareness. I'd like to ask you about this particular topic, which is what is the connection between early childhood caries and breastfeeding? So yes, today's topic is really important, especially for the mothers and mothers to be, because they need guidance and awareness about it. And yes, definitely there is a good connection between early childhood caries and breastfeeding, rather breastfeeding or bottle feeding, any sort of feeding in an improper way and prolonged way. So now let's address to our viewers today for early childhood caries. Early childhood caries is something that the caries in a small kids under the age of 6 years. It starts at the age of 2 years or 1.5 years when child get his teeth erupted in his mouth. So बच्चा जब 6 महीने का होता है उसके बाद उसको दांत आना चालू होता है. एक 1.5 साल 2 साल की उम्र में बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड केरीज हो सकते हैं. ये 6 साल के पहले वाले बच्चों में पाए जाते हैं अर्ली चाइल्डहुड केरीज. इसमें एट अ टाइम मल्टीपल टीथ अफेक्टेड होते हैं, काफ़ी सारे दांत को एट अ टाइम डीके दिखाई देता है. सो अभी इसके रीजंस जानिए, ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसको प्रिवेंट कैसा किया जाए. सो देयर इज़ अ गुड कनेक्शन बिटवीन बॉटल फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केरीज. सो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नाइट टाइम कर रहे हो और ये काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड है, अनवांटेड अनडिमांडेड फीडिंग कर रहे हो, लाइक बच्चे को भूख नहीं है बट फिर भी सिर्फ सुलाने के लिए उसके मुंह में अगर हम दूध का बॉटल थमा दें या उसको सिर्फ सुलाने के लिए अननेसेसरी फीड किया जा रहा है, तो उसके मुंह में वो दूध का एक लेयर काफ़ी टाइम तक रहता है, स्पेशली नाइट में. उसके दांतों के ऊपर एक मिल्क लेयर मिनिमम 8 to 10 आवर्स रहता है. सो इट इज़ वेरी हार्मफुल बिकॉज डीके जो होता है केरीज, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, ऑल आर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज. सो इनको खाने के लिए शुगर लगता है. सो ब्रेस्ट मिल्क हैव अ गुड अमाउंट ऑफ लैक्टोज.
So they take out the extract the lactose from it and they start demineralizing teeth of the child. So आपको इसका इनिशियल स्टेज अगर कंसिडर करोगे तो वाइट डीमिनरलाइजेशन, वाइट स्पॉट्स बच्चे के दांत पे दिखते हैं. इसका मतलब है कि डीके का प्रोसेस चालू हो गया है. सो ये बैक्टीरिया वो लैक्टोज को पकड़ के दांतों को ख़राब करना चालू होते हैं. अगर आप ये प्रोलॉन्ग फीडिंग ना करो, रात को सोते टाइम बच्चे के मुंह में दूध का बॉटल या ब्रेस्ट फीडिंग करके दूध का लेयर ना रखो, तो ये डीके प्रिवेंट किया जा सकता है. 6 महीने के बाद वैसे भी बच्चे को बाहर का खाना चालू हो जाता है. सो यू शुड अवॉइड नाइट फीडिंग दैट टाइम. According to WHO guidelines, you can do breastfeeding till the age of 2 years, but it has to be with proper cautions and awareness. Mother has to extra cautious about child's teeth. The reason is if you are taking this phase very lightly, considering that कि ये दूध के दांत हैं कुछ दिनों में गिर के नए आ जाएंगे, but we have already made one previous video related to this. So don't take milk teeth very lightly. If child is losing his front teeth very early prematurely, he may face difficulties in his speech. उसको बोलने में दिक्कत आ सकती है, उसके प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक्स भी गलत जा सकते हैं. सो मिल्क टीथ का एक प्रॉपर फेज़ में आपको केयर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है. मेक श्योर कि बच्चे के मुंह में दांत आने के बाद जब भी उसको आप फीड करते हो तो थोड़ा सा पानी पिलाओ. पानी से वो ऊपर का लेयर वॉश आउट होने में ईजी जाता है. यू कैन टेक अ सॉफ्ट क्लॉथ जो आप गर्म पानी में डीप करके उसके दांतों पे घुमा के वो लेयर क्लीन कर सकते हो, क्योंकि बच्चे को ब्रशिंग करने में वो सीखने में टाइम जाता है. ही मे स्टार्ट गार्गलिंग आफ्टर 2.5 और 3 years प्लेन पानी से. तब तक तो मदर को ही उसका केयर लेना पड़ता है. और अपार्ट फ्रॉम दैट वेन एवर चाइल्ड टेक्स एनी सॉर्ट ऑफ स्टिकी फूड, मेक श्योर दैट द लेयर ऑन द टीथ ऑफ स्टिकी फूड इज़ रिमूव्ड. शुगर कंटेंट उसके मुंह में ज़्यादा ना रहे. सो अर्ली चाइल्डहुड केरीज इज़ इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट. मतलब मुंह में एट अ टाइम वो मल्टीपल टीथ अफेक्ट करता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केरीज एंड इट्स कनेक्शन विथ ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग. ट्राई टू फीड देम विद द कप और स्पून एंड लाइक विथ स्पून यू कैन फीड देम. अगर दूध देना ही है तो जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसको कप या आप स्पून से फीड करके दे सकते हो. वो इसके टंग के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि टंग के ऊपर भी बहुत बड़ा दूध का लेयर बन जाता है बॉटल फीडिंग से. So I just wanted to ask you, in this situation, like it's up to 2 years, but since there are a lot of people who are not aware about this connection and they come to you after 2 years, right? Is it too late, you think? Or it's still, when you see a situation where they realize, oh, there's something wrong, it's something that can be rectified? Yes. Now again it depends at what stage you get that child to the dentist. Right. अगर आप इनिशियली ही वाइट स्पॉट्स जो है वो धीरे धीरे ब्राउन स्पॉट्स में कन्वर्ट होते हैं, देन इट गेट कन्वर्टेड टू द ब्लैक कलर डीके. अगर आप इनिशियल ब्राउन स्पॉट्स और वाइट स्पॉट्स के स्टेज में बच्चे को लाते हो तो डेंटिस्ट उसको निकाल के फील कर सकता है. बट अगर बाद में जब ऊपर गम्स के ऊपर एक ऐसे स्मॉल एलिवेशन आता है जिसको एक पस का पिंपल की तरह आ जाता है, सो दैट इज़ ऑलरेडी नाउ द टूथ हैज़ बिकम सेप्टिक. तो वो छोटा सा स्वेलिंग रेडनेस जब आना चालू होता है गम्स के ऊपर, इट मीन्स वो दांत ऑलरेडी रूट कैनाल को चला गया है. एंड इट इज़ वेरी पेनफुल. इतने छोटे से बच्चे का वो पेरेंट्स को फिर देखा नहीं जाता है रूट कैनाल किया हुआ, वो रोता है, फिर उसको चेयर में डेंटिस्ट को मैनेज करना पड़ता है. वो स्टेज तक जाने से पहले ही आप इसका प्रॉपर केयर ले सकते हो. जब बच्चा 1.5-2 साल का होता है तो अपने डेंटिस्ट का एक फ़र्स्ट विज़िट कंसल्टेशन के लिए करना चाहिए. दांत चेक कर लो, उनसे प्रिवेंटिव मेजर्स समझ के ले लो कि क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन करना है. सो यू शुड नॉट हैव टू सफ़र थ्रू ऑल दो स्टेजेस. और जब भी आपको इनिशियल चेंजेस दिखे दांत में तो मेक श्योर कि आप जितना जल्दी हो सके डेंटिस्ट के पास लेके जाओ. डेंटिस्ट्री में द मोर यू डिले ट्रीटमेंट इंक्रीजेस. अर्लियर इज ऑलवेज बेटर. Absolutely. For both parents and children. Yes, of Yes. course. Wow. I have been learning so much while I'm, in conversation with doctor, and I'm sure you are too, because like I said, some people are aware and some people aren't, and this is why we are here. We're passionate about this
conversations here because our mission is to educate and guide all of you in the dental health section. So I hope you really liked today's video and topic. And I'd like to say, if you did, make sure you like, subscribe, and share this video with everyone out there because they need to know this information. It is so important. So thank you for watching and thank you for your constant support. Doctor, last words of wisdom of yours, which we love hearing at every episode ending. Yes, definitely, Christine. And remember, caring for little teeth brings big smiles. So keep smiling.